हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सोनिया कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केसी बायोजोन। और हम कर रहे हैं अपना चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल फ्रॉम क्लास 9th। व्हाई डू वी फॉल इल, दिस इज chapter number 13 from class 9th, and this chapter is also important for NTSC students, class 10 students who are preparing for NTSC, and class 9 who want to prepare for NTSC. This chapter is specifically important for them. So chapter why do we fall ill, this is lecture number 2. This is lecture number 2 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स, ठीक है, पेप्टिक अल्सर्स को डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पेप्टिक अल्सर्स it causes acidity related pain and bleeding in stomach. इस डिजीज में होता क्या है? it causes it causes acid acidity related pain and bleeding in bleeding stomach and duodenum, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, duodenum of the affected person. ओके, पहले ऐसा होता था that is due to secretion of a lot of acid, stomach में it was believed for a long, बहुत लंबे समय तक ये सोचा जाता था that high acid या more acid in stomach, which acid? HCl. आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड also helps in digestion. So this high acid in stomach will lead to peptic ulcers. Peptic ulcers. But after that, two scientists came, that is Warren and Marshall. So two Australian scientists proved this wrong. Which scientists? Two Australian, two Australian scientists named Barry Marshall and Robin Warren. They discovered a bacteria. They discovered causal organism, that is bacteria, responsible for पेप्टिक अल्सर. इन्होंने कहा कि पेप्टिक अल्सर्स ज्यादा एसिड प्रोडक्शन की वजह से नहीं होता, ये एक बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से है. इट इज एन टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया? दैट बैक्टीरिया इज very very important, note it down, helicobacter pylori. That bacteria was helicobacter pylori. For this discovery they also got Nobel Prize. These two Australian scientists, Barry Marshall and Robin Warren, they also got Nobel Prize for the same, for their discovery, for this discovery in 2000 2005 को 2005 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.
So these scientists believe that this bacteria can be killed with the help can killed with the help of appropriate एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स का यूज करके एंटीबायोटिक्स का यूज करके हम इनको ग्रोथ रोक सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हम एंटीबायोटिक्स यूज करके इनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स टर्म यहाँ पर आई है, देखिए इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, एंटी प्लस बायोटिक। दैट मीन्स एंटी मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लिविंग, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। सो इट इज अ chemical substance obtained from bacteria or fungi obtained, या हम वर्ड यूज कर सकते हैं आइसोलेटेड, आइसोलेटेड बैक्टीरिया और फंजाई एंड यूज अगेंस्ट अदर बैक्टीरिया और फंजाई दैट आर पैथोजेनिक, ठीक है। पैथोजेनिक के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बच्चों नोट कीजिए, एंटीबायोटिक्स आर नॉट फंक्शनल ऑन वायरसेस, वायरसेस पे काम नहीं करती है ये, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है पेप्टिक अल्सर्स का, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनटीएससी एग्जाम आल्सो, एंड आल्सो इंपॉर्टेंट क्लास स्टूडेंट्स फ्रॉम चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। पेप्टिक अल्सर्स दोबारा बता देती हूँ, एसिडिटी रिलेटेड पेन और ब्लीडिंग इस स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में देखी जाती है, and for a long time it was believed that it is caused due to high acid production in our stomach, okay, इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर्स हमारे स्टमक में हो जाते हैं। लेकिन two Australian scientists proved that was Marshall and Warren, they proved that a bacteria is responsible for peptic ulcer and the bacteria was Helicobacter pylori, and we can stop the growth of this bacteria with the help of suitable antibiotics. Antibiotics are the chemical substances that are isolated from bacteria or fungi, and they can use against other bacteria or fungi that are pathogenic. And moreover, these antibiotics are not functional on viruses. We cannot use antibiotic, same antibiotic for all disease. एंटीबायोटिक्स में भी कुछ एंटीबायोटिक्स जिनको हम बहुत सारी बीमारियों के लिए यूज कर सकते हैं और कुछ है जो कम डिजीज के लिए यूज हो सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम, जो कम बीमारियों के लिए यूज कर सकते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, राइट। और यहाँ एक और क्वेश्चन कर सकते हैं दैट विल बी हेल्पफुल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, फर्स्ट antibiotic, first antibiotic discovered was, first antibiotic discovered was penicillin, penicillin, that was isolated from a fungi, ये fungi की बॉडी से आइसोलेट हुई थी, which fungi, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम से इसको आइसोलेट किया था, किसने किया था, डन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, टाइम दे कैन name of scientist Alexander Fleming, okay, 1929. So nowadays more potent antibiotic, same antibiotic can be isolated
another species of fungi, that is Penicillium क्राइसोजीनम। क्राइसोजीनम बहुत सारी स्पीशीज होती है ना, एक ही जीनस रिलेटेड जीनस की बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है। तो क्राइसोजीनम, CRYSOGENUM, क्राइसोजीनम जो स्पीशीज है पेनिसिलिन की, इसकी पोटेंसी ज्यादा है, तो इससे आइसोलेट अप किया जाता है। सो आई होप this video will be helpful for you all. So don't forget to like, share and subscribe. Goodbye.